बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और एपिसोड के साथ मेरे चैनल रमज़ान लॉ एसोसिएट्स पे मैं बैरिस्टर हारिस रमज़ान हाजिर हूँ। और एज एवर जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम इन टॉपिक्स वो चूज़ करते हैं आपके लिए जिसके अंदर आपके लिए लर्निंग हो, आपको डिफरेंट सोल्यूशंस मिलें और आपका एक थॉट प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट हो। आज का टॉपिक हमने थोड़ा सा लीगल से हटके, जिस तरह मैंने कहा कि हम रखते हैं, वो है, टॉपिक का हमारा टाइटल है पाकिस्तान एयरफोर्स एन एपिटोम ऑफ एक्सीलेंस, a learning for other state organs। हमें ज्वाइन इन कर रहे हैं एक बहुत माहनाज हस्ती जिनका मैं खुद एक बड़ा पर्सनल फ़ैन हूँ और मैं समझता हूँ कि इनसे बहुत कुछ लर्निंग ली जा सकती है हमारे लिए। वो हैं जी एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा बसालत। मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी ऑडियंस के लिए करवाना चाहूँगा। वैसे तो बहुत कुछ कहने को है लेकिन उसको ब्रीफ करने की कोशिश की गई है कि Air Commodore Khalid Chishti joined Pakistan Air Force as a fighter pilot and served in different squadrons. During the service, he was awarded Satara Imtiaz Military and Satara Basalat by Pakistan government, and for his selfless commitment and extreme devotion to the duty. He remained base commanded a fighter squadron, and flew over 3,000 flying hours. While serving Pakistan Air Force, he remained instructor pilot on training and fighter aircraft. He is Masters in Strategic Studies and in Security and War Studies. He is a graduate of Turkish Armed Forces War College, Istanbul, and Asia Pacific Center for Strategic Studies, Hawaii, USA. He also remained member of the faculty at National Defense University, Islamabad, PF Air War College, Naval War College, and Royal Saudi Staff College, Riyadh, Saudi Arabia. While working as assistant to Pakistan Air Force Chief on training and education at Air Headquarters, he remained responsible to manage human resource selection, recruitment, education, and training at Air Force level. He retired from the PEF in 2012. Later, he remained General Manager of Shaheen Airport Services at Lahore Airport. Currently, he is running his own business through a food production unit at Lahore. Over the years, apart from teaching life skills at National College of Arts, Pakistan Institute of Fashion Design, University of Management and Technology, Canade College, he has also been selected as Aviation Subject Specialist by the Higher Education Commission. Furthermore, with an aim to recuperate national spirit and to a better understanding in minds of today's youth about Quaid-e-Azam, he has researched about Quaid-e-Azam's personality and connects the father of the nation with today's youth. He also launched a website titled as myjana.com in his honor. Sir, thank you so much for your time. आप आए, मेरे लिए बहुत बहुत प्रिविलेज की बात है कि मेरे इस चैनल पे आप तशरीफ लाए और आपने अपना टाइम स्पेयर किया, एंड आई अंडरस्टैंड कि यू आर वेरी बिजी और आपने बहुत कुछ करना है. सर, जल्दी से मैं आपकी तरफ करूंगा कि ऑडियंस वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू. सर, आप खुद एक महनाज फाइटर पायलट रहे, आपने एक ग्लोरियस आपकी हिस्ट्री रही है एयरफोर्स की. मैं सर आपसे दरखास्त ये करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक इंस्टीट्यूशन पार एक्सेलेंस की तरफ लेके जाती है. जैसे कि एक छोटी सी मिसाल से मैं बताता हूँ कि जब भी एयरफोर्स के ऊपर कोई भी कड़ा वक्त आया है तो दे हैव ऑलवेज प्रूवन इक्वल टू द टास्क, बट बल्कि बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, बी इट 65 की वॉर, 71, वेरी रिसेंट द ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, इन सब के अंदर ऑल दीज पीपल आर वेरी यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर्स, येट दे डू वंडर्स. तो सर प्लीज थोड़ा सा बताइए कि पीएफ में ऐसी क्या खासियत है, और थोड़ा सा इसको फिर हम आगे ट्रांसलेट करेंगे कि हमारी यूथ क्या सीख सकती है. सर, ओवर टू यू प्लीज. Thank you, Haris, for very kind introduction and very elaborate introduction. Thank you so much. मैं PF का 73 years की हिस्ट्री आप बड़ा चैलेंजिंग है इसको सम अप कर देना चंद मिनट्स के अंदर कि कितनी लेजेंड्स एयरफोर्स ने पैदा किए और हम जैसे लोगों के लिए जो रोल मॉडल रहे. जो मैं समझ पाया हूँ, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आई वाज हेड ऑफ द एयरफोर्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन, मोर इम्पोर्टेंटली कि हम क्या लुक फॉरवर्ड करते थे. हम अब ऑब्वियसली सबको पता है कि हम ऑलमोस्ट जो एक इंजीनियरिंग ऑफिसर या एक पायलट या दूसरी ब्रांचेस जो हैं, सपोर्ट ब्रांचेस हैं, वो FSC लेवल एवरेज एक स्टूडेंट लेते हैं जिसकी एवरेज एज 17-18 साल होती है. ज़ाहिर है वो जब इंडक्ट कर लिया जाता है सबसे पहले उसके अंदर हमारे लिए ये रोल मॉडल से सिलेक्ट होता है कि हमारे ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी बार सेट की हुई है हमारे लेजेंड्स ने और हमारे हीरोज ने, वो बहुत ऊंची है.
बिलीव यू मी, हमारी सिलेक्शन तो हमारी हो जाती है, लेकिन जब हमारे सीनियर लोग हमें बताते हैं कि ये बार सेट की हुई है ऑफ एक्सेलेंस बाय द सीनियर्स थ्रू प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है आपके लिए. एंड ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू द एयर फोर्स, जो आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रगेड और स्ट्रेंथ तक लेके जाती है कि आप उस लाइन पे चल पड़ते हैं. अचीव तो बाद में करेंगे, लेकिन कम से कम आपका माइंड सेट वो बना देती है कि नो लेस देन द बेस्ट इज एक्सपेक्टेड. एंड मैं एक थोड़ी सी रोल मॉडल एक अपने लेजेंड्स को तो कहूंगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अप्रैल 1948 अकेडमी में गए, रिसालपुर अकेडमी. एंड वी आर फॉर्चुनेट, पाकिस्तान एयर फोर्स की बड़ी अच्छी खुशकिस्मती है कि कायद-ए-आज़म को जिंदगी ने सिर्फ हमारी ही एक मिलिट्री अकेडमी को विजिट करने का मौका दिया. वो वहाँ तशरीफ लाए और सोचें कि एक विजनरी आदमी थे और इतने साल पहले, ऑलमोस्ट 73-74 साल पहले उन्होंने विजुलाइज किया था और ये फरमाया वहां जाके कि कोई किसी मुल्क की भी एयरफोर्स, कमजोर एयरफोर्स दुश्मन के रहमो करम पर होती है. और उन्होंने हुक्म ये किया कि पाकिस्तान मस्ट बिल्ड अप हर एयरफोर्स एज क्विकली एज पॉसिबल, व्हिच शुड बी एन एयरफोर्स सेकंड टू नन. ये 73 इयर्स पुरानी मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारे फाउंडर ने हमें कहा कि वी शुड बी सेकंड टू नन. अब वो जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उसको लेजेंड्स और हीरोज ने हमारे कैरी किया. मैंने जैसे पहले अर्ज किया, जो हमारा बार सेट की जाती है, दे हैव रेज्ड द बार सो हाई, हमारी बार्स इतनी हाई एक्सपेक्टेशन की, नंबर वन वो है. दूसरी होती है कि आपके अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया जाता है. एक चीज याद रखिए कि फाइटर फ्लाइंग एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा डेविएट करके बताऊंगा. देयर इज नो रनर्स अप. आपने 27 फरवरी 19 का जिक्र किया. Who was the runners up in that combat? So the runners up was on ground, being beaten up by people, taken as prisoner of war. तो हमारा either you are the champion or you're nobody. तो जब आपका mindset किसी भी शख्स का, चाहे वो आप सिविल में करें, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बैरिस्टर हो, when you think that there is no place for runners up, तो आपका एक mindset, mind game change हो जाती है. आपका दिमाग जो रेडिएट करता है एनर्जी, जो केमिकल्स रेडिएट करता है फिजिकल बॉडी को, वो करस्पॉन्ड करती है. वी आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग्स और सुपर कोई एंजल्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में लोग. बट मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी जाए, जब आपको ये पता हो कि रनर्स अप की ऑप्शन ही नहीं है, वी कैन नॉट बी नंबर 2. और तीसरी बात ये है कि जो हाईएस्ट एक मोटिवेशन लोगों में होती है कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ जॉब सीकिंग इन द एयरफोर्स. हमारा जब आप लोगों से मिले जाके तो आप लगता है कि ये जॉब सीकर्स नहीं थे जो नौकरी ढूंढ रहे थे और एयरफोर्स में आ गए. They are passionate about what they do. They are not hunting के जी कुछ करना था तो इसलिए एयरफोर्स में आ गए. आप किसी से जाके मिलें तो आपको बताएगा कि I was passionate. I wanted to be a pilot. I wanted to be an engineer. मैं एयर डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता था. और जो सबसे ज्यादा सिस्टम को सर्वाइव करा रही है ऑलमोस्ट फॉर 73-74 इयर्स कि हमारे मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि ट्रेनिंग सिलेक्शन का खास तौर पे मैं असिस्टेंट टू एयरफोर्स चीफ रहा. मेरिट एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं, टू द अटमोस्ट मेरिट फॉलो किया जाता है और कोई सिफारिश का कॉन्सेप्ट ही नहीं. बिकॉज सबसे ज्यादा जो क्वालिटी आपकी अंडरमाइन होती है, विच इज डेट्रीमेंटल आपकी होती है, जो कॉम्बैट रेडीनेस को कह लें, एफिशिएंसी को कह लें, मोरल को कह लें, मोटिवेशन को कह लें, वो चीज होती है जब ये पता हो कि हारिस रमजान और मेरे अंदर एक कंपटीशन है. खालिद चिश्ती कॉम्पिटेंट इतना नहीं है, लेकिन इसकी क्योंकि सिफारिश है तो ये वो ओवर शाइन हारिस साहब. जिस दिन ये हो जाएगा तो यू विल स्टॉप वर्किंग एंड आई विल गेट प्रमोटेड without being on merit, obviously. तो एयरफोर्स बड़ी स्ट्रिक्टली मेंटेन करती है, एंड इसलिए भी मेंटेन करती है कि एक फाइटर जहाज ज़हन में रखिएगा कि सिफारिश पे चल नहीं सकता. बिलियंस का एक जहाज होता है, वो आप ये नहीं कर सकते कि चलो थोड़ा सा ये सिफारिश वाला बंदा थोड़ा आहिस्ता चला लेगा. तो it has to be the topmost quality, and there is obviously to have an air force second to none, you got to have people who are second to none. Absolutely sir, absolutely. जी, तो सर इस ये जो आपने प्रोसेस के बारे में जो आपने बात की है, ये बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन आपने एक एलिमेंट बताया. इससे ये तो हो गया सर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कैडेट जो होता है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजर के आता है, और फिर आप उसको जिस तरह के एक कुंदन बनाने का एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है. एक भट्टी में जिस तरह एक चीज डाली जाती है और फिर वो एक प्रोसेस होकर निकलती है. सर वो जो 2 या 3 साल जो इनिशियल एकेडमी के, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो उनके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि वो एयरफोर्स क्या इंस्टिल करती है उन लोगों के अंदर. जैसे कि हमने सुना कि एयर मार्शल अजहर खान ने विद इन इयर्स
ایک بالکل روڈیمنٹری ایئر فورس کو دنیا کے ٹاپ ایئر فورس کے ساتھ کے لیول پہ کھڑا کر دیا. وہ کیا چیزیں تھیں جو کہ ان کو اٹھا کے آگے لے گئی؟ سر اس پہ تھوڑا سا کیجیے گا. ایک تو تھوڑا سا میں یہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں آپ کے جو دیکھنے والے خواتین حضرات ہیں, وہ یہ کہ یہ ایئر فورس میں یہ 2 یا 3 سال صرف نہیں ہوتے, جو ایک ٹپکل شاید عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے جی 3 سال یا 4 سال جو ہوتے ہیں جی وہ بڑے ٹف ہوتے ہیں. ایئر فورس میں اسپیشلی جو آپریشنل برانچز ہیں ہم ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں, بیکاز ہمارے سینئرز اسٹینڈرڈ جیسے میں نے شروع میں کہا سیٹ کر دیے ہوتے ہیں. یو کی ناٹ سے کہ میری فائٹر ٹریننگ ختم ہو گئی ہے تو اب میں بہت زبردست کمبیٹ پائلٹ بن گیا. اٹس سچ اے چیلنجنگ اینڈ ڈیمانڈنگ تھنگ, سچ اے چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ چیز ہے کہ ایوری ڈے آپ کی ایگو کو, آپ کی اسکل کو, آپ کے پروفیشنلزم کو اور آپ کے نالج کو ہوا میں چیلنج کیا جاتا ہے. دیر از نو ایکڈیمک ٹیسٹ کے سال بعد آپ ایک کوئز میں بیٹھیں گے یا ایگزامینیشن میں بیٹھیں گے, آپ نمبر اچھے لے لیں گے, یو ول اسٹینڈ آؤٹ. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. فائٹر فلائنگ یہ ہے کہ میں ایوری ڈے 2 یا 3 دفعہ ہوا میں جاتا ہوں, اپنے کولیگز کے ساتھ ایک سیمولیٹڈ کمبیٹ کرتا ہوں, اور سیمولیٹڈ کمبیٹ میں مائی اسٹینڈرڈز آر مائی کامریڈز جو سیٹ کرتے ہیں, اینڈ obviously my ego, my position, my professional knowledge is tested and challenged every day. اور جب وہ چیلنج ہوتا ہے تو I have to work hard at night to prepare that mission so well. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. ایئر مارشل اصغر خان کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اور ان کا جو اسٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کیا, نو ڈاؤٹ ہیٹس آف ٹو ہم, آل ریسپیکٹ اینڈ ڈیو ریگارڈس ٹو ہم. انہوں نے ایئر فورس کا ایک ماڈرن ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ 1965 سے پہلے جنگ ایئر فورس بنانے کے بہت تھوڑے عرصے میں, جب ریسورسز بھی اتنے نہیں تھے, ملک بھی اتنا obviously اکنامکلی بھی اسٹرانگ نہیں تھا, ملٹریلی بھی اسٹرانگ نہیں تھا, کہ ایئر فورس کو بہت زبردست پلیٹ فارم. ایک اور چیز جو ایئر فورس میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایون 23 مارچ کا فلائی پاسٹ ہوتا ہے تو ایئر فورس چیف خود فلائی کرتے ہیں, فلائی پاسٹ کو لیڈ کرتے ہیں. یہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کا سب سے زیادہ ہمارا جو ایک پراؤڈ ہیریٹیج ہے, وہ پرابلی انہرڈ یا انسین ہے ایک کامن ادر پارٹس آف دا ورلڈ میں کہنا چاہوں گا. جسٹ ٹو نریٹ اینڈ ویری انٹرسٹنگ اسٹوری, ایک 1965 وار سے چند دن پہلے ایک بڑا سوئسائڈل C-130 کا آپریشنل مشن تھا انہی دنوں میں, جو بڑا رسکی تھا اور ویدر بہت خراب تھا, اور اتنا خراب تھا کہ چانسز تھے کہ وہ اتنا کرٹیکل مشن تھا C-130 کا, اڑنا بھی بہت ضروری تھا, وہ لاجسٹک سپورٹ بالکل سر, بالکل, لیکن رسکی تھا کہ ایئر کرافٹ مائٹ کریش. اور بارڈر کے قریب تو یہ تھا کہ اگر یہ دوسری طرف گر گیا بہت بڑا ایک انڈیا کو ایک موقع مل جائے گا, کہ پاکستان ایئر فورس کا ہم نے جہاز مار گرایا. تو آپ سوچیں کہ پائلٹ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ویدر کلیئر ہو کہ نہ ہو, ایک گاڑی آ کے رکتی ہے, اس میں سے ایئر مارشل نور خان نکلتا ہے, اور وہ سیدھے کاکپٹ میں جا کے اس کو کہتے ہیں جنٹلمین لیٹس اسٹارٹ اپ دی انجنز. ہی وینٹ ان دیٹ C-130 himself, اور وہ پورا مشن کر کے, اتنا رسکی مشن تھا, اور واپس کامیابی سے تشریف لاتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنا بڑا رسکی مشن تھا, ویدر بھی خراب تھا, آپ نے خود کیوں اتنی بڑی اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی, یو آر دی ایئر فورس چیف. تو ایئر فورس چیف نور صاحب نے کہا کہ چاہتا تھا کہ ہائیسٹ لیول کا جو فیصلہ سازی ہے, جو ڈیسیژن میکنگ ہے, وہ پائلٹ کو کاکپٹ میں اویلیبل, اس سے اوپر تو کسی کا فیصلہ نہیں ہونا تھا نا. دی ایئر فورس چیف وانٹڈ کہ جو ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ شوڈ بی اویلیبل ٹو دی پائلٹ ان دی کاکپٹ, انسٹیڈ آف ہی گیٹنگ کنفیوزڈ ان دی ایئر کہ یار موسم ٹھیک نہیں ہے, مڑ جاؤں واپس, ڈسکنٹینیو کر دوں مشن, سیفٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہی سیٹ ان دی ایئروپلین. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, یہ چیزیں راتوں رات نہیں بنی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1964, almost more than 50 years. تو ایسے لیڈرز جب اتنے نڈر لیڈر ہوتے ہیں, لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہوتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ میرے جیسے جو ایوریج لوگ بھی ایئر فورس میں بھرتی ہو جائیں, ان کے اوپر کتنی obligation یا پریشر ہوتا ہے ٹو پرفارم ویل. آف کورس بالکل صحیح ہے سر, بڑا اچھا آپ نے سر ایکسپلین کیا. اچھا ایک تو سر یہ ہو گئی ود ریسپیکٹ ٹو ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ, ایکسلنٹ رول ماڈلس ٹو فالو. سر تھوڑا سا اس کو آگے اس طرح بڑھائیں گے کہ جس طرح فار ایگزامپل ویری ریسنٹلی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ ہوا, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی لرننگ جو آؤٹ کم ہے میں سمجھتا ہوں, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ ہم لوگ اس کو بہت بوسٹ آف کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے, مگر ایک بہت کارڈنل پرنسپل کو مس آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دی لیول آف کانفیڈنس, انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا لیول آف ریڈینس اینڈ پریپریشن, جس کی بیس کے اوپر آپ اپنے اینیمی کو یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی اب انتظار کرو ہم آ رہے ہیں. And yet in broader daylight you go, you execute your missions with perfection,
and you actually win trophies out of it. Sir, what is it behind this entire scenario? इस पे सर थोड़ी सी जरा रोशनी डालिए सर. देखिए, अगर आप टेक्निकली किसी से भी पूछें और स्पेशली लेमैन हो और फाइटर फ्लाइंग से ज़्यादा वाकियत ना हो, तो आप उसे पूछें कि ये हिंदुस्तान का जहाज़ ये मारा गया अभिनंदन का और दूसरा भी, ये कितनी देर में इन पायलट से मारा होगा जहाज़? तो जवाब टेक्निकली आएगा कि ज़ाहिर है जब उन्होंने मिसाइल का बटन प्रेस किया और जाके मिसाइल लगा तो वो 30 सेकंड या 1 मिनट का जो ट्रेवल है वही है एक जो मिसाइल जाके हिट कर दिया. लेकिन वी नीड टू नो कि इट इज years ऑफ प्रिपरेशन. ये कई सालों की एक पैशन है उसके पीछे होती है, जो आपने उस 10 या 15 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ये फैसला करना होता है कि यस और नो, नाउ और नेवर. सर ये जो ऑप्शन होती है ये बिल्ट इन प्लेटफॉर्म में उस वक्त आपको रेडीमेड किसी प्लेट में नहीं दी जाती लाइक अ मेन्यू कार्ड कि यू हैव दिस ऑप्शन, चूज दिस. ये नहीं होता. इट इज years ऑफ those experience of these officers of the pilots जिन्होंने 7 और 10 और 15 साल लगाए होंगे अपनी सर्विस में to prepare for that millisecond when obviously the enemy has as good or as potent or as lethal missiles and the defense available to himself what they had. तो जब दोनों के अंदर गेम ऑफ नर्व्स एंड टाइमिंग्स और डिसीजन मेकिंग मैटर कर रहा होता है, तो इस वक्त आपकी ट्रेनिंग काउंट होती है, इस वक्त आपका पैशन काउंट होता है, इस वक्त आपका वो कॉल एक बिलीव काउंट करता है जब आप कहते हैं आई हैव टू बी सेकंड टू नन. तो इट्स years ऑफ, ये रातों रात कुछ नहीं होता है. दुनिया के, मैं सिर्फ मिलिट्री की नहीं देना चाहता, जहांगीर खान पेशावर में जब हम मेरी पोस्टिंग थी तो वहीं पे जहांगीर खान भी खेला करता था, तो वर्ल्ड चैंपियन बन गया. एक दफा मैंने उससे पूछा कि तुम कितनी ट्रेनिंग कर, हम फिजिकली देखते थे कि शायद वो 16 घंटे स्क्वाश कोर्ट में होता था, 16. वो कहता है कि मैं सुबह 4 बजे लंदन में अपने भाई के पास था, तो 16 किलोमीटर ऑलमोस्ट माइनस टेम्परेचर में मैं जॉगिंग सुबह किया करता था टू बिल्ड माय स्टैमिना. हमें ये लगता था कि जहांगीर खान ने जो 1 घंटे का स्क्वाश कोर्ट में मैच खेला है, यार ये बड़ा स्विफ्ट है, इसका स्टैमिना बड़ा जबरदस्त है, इसकी स्किल बड़ी अच्छी है, बाजू से जब शॉट उठाता है तो हर एक उठा लेता है. इट डजंट कम दैट वे. इट्स years ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको लेके चलता है और आपका माइंडसेट बनाता है, तब जाके आपको 555 मैच अनडिफीटेड 6.25 साल तक जहांगीर खान बना. गिनीज बुक में उसका नाम 555 मैचेस अनबीटन ऐसे नहीं बना. हम समझते थे कि हम उठते मैच समझते हैं कि उठता होगा क्योंकि स्किल वाइज इतना स्ट्रांग है, वो जीत जाता होगा जाके. मोहम्मद अली बॉक्सर, वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन, उसने एक दफा कहा था कि मैं सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ. उसने कहा, वो आपको सबको याद होगा कि वो रिंग में डांस किया करता था मैच से पहले और वो ओपोनेंट को गुस्सा दिलाता था. तो वो कहता था कि जब मैं डांस कर रहा होता हूँ अपने ओपोनेंट के सामने, मेरा मैच कई किलोमीटर दूर पार्क्स में, जिम्स में, रोड ट्रैक्स के ऊपर मैच मेरा खत्म हो चुका होता है. आई हैव आइदर वन और लॉस्ट दैट मैच देयर. ये मैं सिर्फ उसको एक रिजल्ट के लिए वहां जाता हूं. तो मैं, यही हमारी फ्लाइंग में भी है कि वहां पे सिर्फ आप रिजल्ट के लिए जाते हैं, मैच हार या जीत बहुत पहले फैसला हो गया होता है, जिस तरीके का आपने परफॉर्म या ट्रेन या मोटिवेट अपने आप को किया हो. सही सर, आई लाइक टू बिलीव दैट. जी सर, ब्रिलियंट सर, थैंक यू, बड़ा जबरदस्त सर आपने एक्सप्लेन किया. बस इसको वाइंड अप करते हैं सर सेशन को, वी हैव टू कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर द ऑडियंस. मेरा सर आखिर में अगर आप इसको इस तरह करें कि ये जो अमेजिंग आपने एक पूरा सिनेरियो को एक्सप्लेन किया है, एक माइंडसेट, एक थॉट प्रोसेस और एक बहुत बहुत जबरदस्त कह लें कि एक एफर्ट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बाद ये ऐसे लोग जो है वो पैदा होते हैं जो मेंटली इतने टफ होते हैं और इन एनी इवेंचुअलिटी वो दे प्रूव इक्वल टू द टास्क. सर, हमारे जो सिविलियन साइड पे बहुत सारे हमारे स्टेट ऑर्गन्स हैं, उनमें अनफॉर्चुनेटली इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स और फुकदान हैं. और दूसरी सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारी यंगर लॉट है, वो उनके अंदर इस तरह की कोई भी चीजें इंस्टिल नहीं की जा सकती. अगर सर इसको आप 1 या 2 मिनट में अगर एक्सप्लेन करें कि वो ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं जो हमारे यंगस्टर्स अपने अंदर इंस्टिल करें, और स्टेट ऑर्गन्स भी जो हमारे दूसरे डिफरेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस तरफ बढ़ना शुरू करें ताकि यही स्पिरिट ट्रांसफर करे नॉट ओनली इन पीएफ बट दूसरे ऑर्गन्स में. सर थैंक यू. बड़ा चैलेंज और टास्क दिया आपने 2 मिनट में पाकिस्तान के सॉल्यूशन को बताने का, ज्यादा कर ले. I'll save the time. देखिए, यूथ के लिए ये लाजिम है कि उनकी जो होपलेसनेस और डिसअपॉइंटमेंट्स उनको निकाला जाए. आपने कहा कि जो मैं लेक्चर्स वगैरह देता हूँ और जना का भी देता हूँ, आई वांट टू कनेक्ट यूथ विद द पॉजिटिविटी एंड होपफुलनेस. उनको ये
आइडिया उनके ज़हनों में एक बैठ चुका है कि सिफारिश चलती है, पैसा चलता है और ये सारा, तो पीपल स्टॉप वर्किंग ऑब्वियसली। हमें हर एक को यूथ का सिंपल एक रेमेडी है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। हम हर एक को ब्लेम करते हैं कि सबका कसूर है सिवाय अपने। सो आई टेल द यूथ टू रिमेंबर दिस वर्ड, इट मे बी देयर फॉल्ट बट इट इज योर प्रॉब्लम। फॉल्ट करने के लिए तो आप सारी दुनिया को कह सकते हैं इट्स देयर फॉल्ट, बट प्रॉब्लम फिर भी आपका रहेगा। You have to look for a job, you have to look for a status, you have to earn money for your family tomorrow. तो blame देना एक और चीज होती है। पहले सबसे अपने आप से शुरू करें, we improve ourselves, एक और faith develop करें कि मैं अपनी जगह ठीक हो जाऊं, हारे साहब आप अपनी जगह बहुत अच्छे हो जाएंगे और बाकी सब अच्छे हो जाएंगे। Tomorrow the goodness will prevail. दुनिया में जो तरक्कियां हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि majority of the people picked up the understanding and conviction. यार अच्छा हम अच्छा क्यों ना परफॉर्म करें। हमारा लो परफॉर्मेंस मोस्टली यूथ स्पेशली इसलिए हो गई हुई है कि दे थिंक देयर इज हार्डली एनी बेनिफिट ऑफ दिस। इसका ना तो कोई फायदा है ना इसका कोई मुझे रिवॉर्ड मिलना है किसी स्टेज पे। जब हम एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, लोग अच्छे मेजॉरिटी अपना ज़हन बदलना शुरू हो रहेंगे, तो दे विल हैव अ बेटर फेथ इन द कम्युनिटी। और जब कम्युनिटी किस चीज से बनती है उसी से इदारे बनते हैं ऑब्वियसली। और कल को एक इदारे किसी एक पर्टिकुलर इदारे की तरफ ना देखें, वी स्टार्ट फ्रॉम आवर होम, ट्राई टू डू दैट। पहले सबसे आखिरी मेरी 10 सेकंड की बात ये होगी कि आया हम वाकई सेकंड टू नन परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस वुमन हूँ। आया आर वी डूइंग इट सेकंड टू नन? मेरे से अच्छा कोई नहीं कर रहा इस वक्त परफॉर्मेंस वाइज। और उसके लिए फिर मैं कभी आपका टाइम लूंगा जिसके अंदर आई विल से यू गॉट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। Sitting quiet and sitting back home, nobody rewards you. Thank you. Sir, thank you so much for your time, because हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि आपसे रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ऑडियंस को कि मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ चिश्ती साहब का, और चिश्ती साहब के पास इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन और इतनी मोटिवेशनल एरियाज होते हैं कि जो कि एक आम आदमी को एकदम से उसकी थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि मैं जब भी मुझे मौका मिला इनकी सोबत में बैठने का, तो मैं ये समझता हूँ कि आई ऑलवेज came out as a different person and my thought process changed. तो इसलिए मैंने चिश्ती साहब को बड़ी रिक्वेस्ट की है कि ये तो एक पहला सेशन था, इंशाल्लाह बहुत से और एरियाज इंटरेस्टिंग जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर एक जना साहब का एलिमेंट है, फिर एक विनिंग लीडरशिप, सर हाउ टू डेवलप द विनिंग एटीट्यूड, सर का एक बहुत जबरदस्त एक टॉपिक है जिसपे इनका ये एक टोटल माइंड सेट को चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स जो हैं उसमें इंशाल्लाह सर वो कवर करेंगे। आज के लिए सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आप बड़े अपने स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला है, और इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स के लिए ऑडियंस में आपको कहूंगा कि आप इंतजार करें, चिश्ती साहब एक डिफरेंट एंगल के साथ फिर हमें ज्वाइन इन करेंगे। सर थैंक यू वंस अगेन, बड़ी मेहरबानी फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी सर।